Hello everyone, I'm Tanikam and welcome back to my YouTube channel. We are discussing what is linear differential equation with constant coefficients and आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Cauchy's linear differential equation क्या है. Cauchy's linear differential equation को Euler's या फिर Euler's linear differential equation भी कहा जाता है. तो क्या है Cauchy's linear differential equation? तो बेसिकली हमने जो अब तक linear differential equations डिस्कस किए with constant coefficients थे से a0, a1, an. बट अगर इनके साथ विथ करस्पॉन्डिंग ए नॉट ए एन अगर कुछ वेरिएबल से ये एक्स के फॉर्म में हो या फिर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो वो क्या हो जाता है यू कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली बाय रेगुलर मेथड्स. So these such terms fall under Cauchy's linear differential equation we have to reduce, which we have to convert to our linear differential equation with constant coefficient form. So let us discuss what is the equation. So basically an equation of the type a naught x raised to n dny by a dxn plus a1 x raised to n minus 1 into dn sorry यहाँ पे n minus 1 होना चाहिए, मैंने गलती कर ली. Okay, that's my mistake. So x raised to n minus 1 dn minus 1 y upon dx raised to n and so on up to a n minus 1 x dy by dx plus a n y equals to f of x. ये है हमारा इक्वेशन एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अभी देखो यहाँ पे ए नॉट ए एन तो कॉन्स्टेंट्स है बट उसके साथ हमें ऑब्जर्व हो रहा है एक कुछ टर्म्स है एक्स एक्स टू एन माइनस वन एंड सो ऑन, that is variables are present and such type of equation where we have variables with respect to the derivative terms and constants, such equation is known as Cauchy's homogeneous linear differential equation. We can also replace dy by dx by differential operator. So say d by dx is a differential operator d. So क्या करना है इसको ऐसे इन इक्वेशन को इनको रिड्यूस करना है so that ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients बन जाए. You have to reduce this equation to evaluate it by our methods which we have learned in previously. इसके पीछे वीडियोस अगर आप देख लोगे तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके क्या है, कैसे मेथड क्या क्या मेथड्स एप्लीकेबल है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. प्लीज डू विजिट माय यूट्यूब चैनल फॉर द प्रीवियस पार्ट. ओके, so let us continue with this. So linear differential equation में convert करना है तो suppose let us substitute x as e raised to z. तो x as e raised to z substitute कर रहे हैं तो simultaneously we can also write z is equals to log of x. तो यहाँ पे observe क्या हो रहा है x and y z are dependent on each other. So by chain rule we can say y is dependent on z, z is dependent on x. So dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx को लिख सकते हो आप dy by dz into dz by dx by chain rule and d by dz by dx की रूल डेरिवेटिव हम इस इक्वेशन z इक्वल टू log x से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x into dy by dx सॉरी dy by dz. तो ये x अगर शिफ्ट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x into dy by dx equals to dy by dz. और अगर मैंने इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर डाल दिया तो ये हो जाएगा x into dy by dx equals to d of y where what is d, d is differential operator d by dz. तो अब क्या देख रहे हो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है Cauchy's इक्वेशन इसमें x dy by dx को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज dy by dz, correct, or in general d of y where d is differential operator d by dz. तो ये टोटली ये वेरिएबल यहाँ पे से हट रहा है और हमें सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिल रहा है. साइमल्टेनियसली सपोज अभी ये जो इक्वेशन है से इक्वेशन 1 इसका अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लूँ तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक मिनट, तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 by x into dy by dz. So again हमें पता है dy by dx अगर निकाल रहे हैं but dy by dx क्या है, it is by chain rule with respect to z and then with respect to x ऐसे हो जाएगा. So यहाँ पे by u into v rule ये हो जाएगा 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर into dy by dz as it is plus
1 बाय एक्स एंड एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी जेड का भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स बाय chain rule, because z is dependent on x, y is dependent on z, z is dependent on x. So ये just अगर simplify करोगे तो ये होगा -1 upon x square into dy by dz plus 1 upon x into d square y by dz square ऐसे हो जाएगा, एंड इंटू डी वाई बाई डी जेड, सॉरी डी जेड बाई डी एक्स हमें ऑलरेडी पता है 1 बाय एक्स, तो ये देखो यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है, यू कैन टेक इट आउट कॉमन ऑल्सो, और यू कैन से राइट इट एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर। एंड जब ये एडजस्टमेंट करोगे तो एडजस्टमेंट बेसिकली ये क्या है, इक्वेशन है, ये है डी वाई, ये है डी इन स्क्वायर वाई, करेक्ट, एंड माइनस साइन के एडजस्टमेंट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर, एंड एक्स स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी स्क्वायर, सॉरी माइनस डी वाई प्लस डी स्क्वायर वाई, तो डी कॉमन निकालोगे तो डी -1 into y, where what is your d, capital D is differential operator d by dz. So replacement क्या होगा, देखो x square d square y by dx square को replacement होगा d into d minus 1 y. So on it goes on. So x cube d cube y upon dx cube को replacement होगा d into d minus 1 into d minus 2 y. Similarly x raised to 4 d raised to 4 y into dx raised to 4 को हो जाएगा d into d minus 1 d minus 2 d minus 3 y and so on. तो ऐसे जब रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x वेरिएबल प्रेजेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें जो मिलेगी इक्वेशन वो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन फॉर्म क्या होता है, yc प्लस yp, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो। बेसिकली यहाँ पे हम शॉर्टकट्स मेथड का ही यूज करेंगे पर्टिकुलर मेथड फाइंड आउट करने के लिए, और फिर जो मिलेगा वो होगा सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा y एंड z के फॉर्म में, ये ध्यान में रखो। ये तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो होगी वो z को रिप्लेस बैक करना है इन फॉर्म ऑफ x, and when you replace back in form of x, that will be a required final solution of this Cauchy's linear differential equation. आई होप सबको ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो फिर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, से सॉल्व एक्स स्क्वायर d square y by dx square minus 3x dy by dx plus 5y is equals to x square into sin log of x। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हमें इवेल्युएट करना है, तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज Cauchy's linear differential equation। तो Cauchy's linear differential equation को सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉल्यूशन में लिखते वक्त मेंशन करो कि कौन सा फॉर्म है। एक हमने आज देख रहे, इस वीडियो में देख रहे, दैट इज Cauchy's, और एक फॉर्म है दैट इज लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है वो अगली वीडियो में देखेंगे हम, बट ये ध्यान में रखो कि ये हैबिट रखो कि ये मेंशन करो कौन सा इक्वेशन है। ओके, सो ये Cauchy's linear differential equation है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स x स्क्वायर x प्रेजेंट है। सो हमें क्या करना है, Cauchy's linear differential equation में सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल्स टू e रेज टू z। तो साइमल्टेनियसली z को हम लिख सकते हैं एज log of x। जब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली dy by dx, d square y by dx square, ये टर्म्स भी रिप्लेस हो गए। तो also simultaneously we have to make a replacement x into dy by dx as
डी इंटू वाई, हमने अभी थ्योरी पार्ट में देखा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस होगा डी इंटू कैपिटल डी इंटू वाई, वेर एज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस होगा डी इंटू डी माइनस वन वाई, वेर व्हाट इज डी, डी इज इक्वल डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाय डी से। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस जब करोगे तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ गिवन इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे हम डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस सॉरी माइनस थ्री इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे डी वाई प्लस 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन लॉग एक्स है। अभी देखो x को हम रिप्लेस कर रहे हैं ई रेस टू जेड, तो ये होगा ई रेस टू जेड होल स्क्वायर इंटू साइन, x को ई रेस टू जेड कर रहे हैं तो z इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं z, तो साइन z हो जाएगा, ये log x को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे z। देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में हम चेंजेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली चेंजेस राइट हैंड साइड में भी करना है, तो राइट हैंड साइड मतलब ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ z। ओके, सो नाउ जस्ट इवेलुएट दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री डी प्लस फाइव एंड आई एम टेकिंग दिस थ्रू आउट y कॉमन इक्वल्स टू ई रेस टू जेड स्क्वायर है, मतलब ये लिख सकते हो ई रेस टू टू जेड इंटू साइन सेट, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री डी दैट इज डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू टू जेड इंटू साइन सेट। अब ये है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हम हमारे रेगुलर मेथड से इवेलुएट करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है। अभी ये जो इक्वेशन है ध्यान में रखो, ये है इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y एंड z, तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी y एंड z के फॉर्म में ही दिखना चाहिए। तो पहले फाइंड आउट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज माइनस फोर प्लस वन, तो 5 इंटू वन, बट ये माइनस फाइव देगा इंटू माइनस फाइव देगा, बट यहाँ पे माइनस फाइव नहीं है तो ऐसे डायरेक्ट फैक्टर्स तो नहीं मिलेंगे, बेटर रहेगा फॉर्मूला मेथड यूज करो। क्या कहता है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से d हो जाएगा माइनस माइनस फोर प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4a इंटू सी दैट इज एक तो वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, अपॉन 2a दैट इज 2a की वैल्यू है 1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी, हाँ वैल्यू फॉर d क्या मिल जाएगी, वैल्यू फॉर d हो जाएगी 4 प्लस और माइनस रूट 16 माइनस 20 होगा, 16 माइनस 20 तो बेसिकली माइनस 4 होगा अपॉन 2, तो रूट ऑफ माइनस 4 इज इमेजिनरी टर्म, तो इमेजिनरी मतलब आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो d की रिड्यूस हो जाएगी 2 से डिवाइड करोगे ये होगा 2 प्लस और माइनस आयोटा, तो d के हमें दो रूट्स मिल गए, एक मिल गया 2 प्लस आयोटा और दूसरा मिल गया 2 माइनस आयोटा, सो बेसिकली दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड जब कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो हमारा जनरल सोल्यूशन सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, yc होता है इन फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो कंपेयर करोगे अगर a प्लस आई बी से, a की वैल्यू यहाँ पे है 2, b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा e रेस टू 2z cos ऑफ z प्लस i ऑफ सॉरी ये हो जाएगा c1 cos ऑफ z प्लस c2 sin ऑफ z। Where why have I written it in form of z? The solution is in form of z because हमारी इक्वेशन क्या है, z के फॉर्म में है, इसीलिए सॉल्यूशन भी z के फॉर्म में ही दिखना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अभी मिल गया, अभी हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल,
पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला yp क्या होता है, yp होता है 1/phi ऑफ d f ऑफ x, बट यहाँ पे z है तो f ऑफ z, सो देयरफॉर yp हो जाएगा 1/d² माइनस 4d प्लस 5 इंटू e⁻² sin z। तो अभी यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज करना है, तो शॉर्टकट मेथड कौन सा यूज होगा, देखो फंक्शन में है एक एक्सपोनेंशियल है और एक फंक्शन ऑफ z है, सो बेसिकली दिस इज ऑफ द फॉर्म rule where f of x is equals to e⁻ax into v is any function of x। तो इस रूल के हिसाब से हमें पता है हम क्या करते हैं, हम yp का फॉर्म क्या होता है, e⁻ax को बाहर निकालते हैं, और जब बाहर निकालते हैं हम d में रिप्लेस चेंजेस करते हैं एज d प्लस a इंटू द फंक्शन v। तो इस हिसाब से रिप्लेसमेंट होगा, इस रूल के हिसाब से अभी e⁻ax मतलब यहाँ पे e⁻² है, e⁻² मतलब 2 से हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एंड फिर yp क्या मिल गया, देयरफॉर अभी अकॉर्डिंग टू दिस रूल yp हो जाएगा e⁻² को बाहर निकालो और इस d को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो बाय d प्लस a मतलब d प्लस 2, तो ये हो जाएगा d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन z। तो ये तो थोड़ा इजी हो गया, इसे बस सिंप्लीफाई करना होगा, e⁻² इंटू डिनोमिनेटर में होगा d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 5 इंटू साइन z। तो प्लस 4d माइनस 4d कैंसल, d² रहेगा प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 5 इज प्लस 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अभी yp इज इक्वल टू e⁻² इंटू 1/d² प्लस 1 इंटू साइन z। तो ये तो ज़्यादा इजी है, ये तो बेसिक रूल है, डेट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रूल। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब होता है साइन x, तब yp क्या होता है, yp होता है 1/phi ऑफ d को हम रिप्लेस करते हैं माइनस a² इंटू साइन ax के साथ। तो इस रूल के हिसाब से साइन z है मतलब कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कोएफिशिएंट वैल्यू z की है 1, सो देयरफॉर d को रिप्लेस होगा, d² को रिप्लेस होगा -1² दैट इज -1, सो देयरफॉर yp हो जाएगा e⁻² इंटू 1/-1 प्लस 1 इंटू साइन z। बट ये क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, 0 हो गया मतलब ये हो गया केस ऑफ फेलियर, और जब ये केस ऑफ फेलियर होता है हम क्या करते हैं, हम एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं और एक डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो केस फेलियर है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, e⁻² वैसे ही multiplying by x the variable that is z and derivative of the denominator d² का डेरिवेटिव 2d into sin z। अब ये तो ज़्यादा इजी हो गया, e⁻² इंटू z अपॉन 2 वैसे रहेगा, 1/d है, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो ये होगा माइनस e⁻² इंटू z cos z अपॉन 2। तो yp हमें मिल गया, yc हमने वैलिड कर लिया है, अब बचा क्या, टू रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp, yc हमारे पास है e⁻² c1 cos z प्लस c2 sin z माइनस z e⁻² इंटू cos z अपॉन 2। बट ये क्या है, दिस इज अ सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ y एंड z, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन फॉर्म ऑफ y एंड x, तो रिप्लेस बैक द वैल्यू ऑफ z, replace z is equals to log x, or you can say e⁻² equals to x, so therefore अभी फाइनल सॉल्यूशन होगा y equals to e⁻² को हम x लिख रहे हैं, तो e⁻z को x लिखोगे तो ये हो जाएगा x² इंटू c1 cos ऑफ z को हम लिख रहे हैं log x प्लस c2 sin ऑफ log x माइनस z को हम लिख रहे हैं log x
इंटू ई रेस टू जेड को x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जेड को लिख रहे हैं आगे लॉग ऑफ x अपॉन 2. So this is our required general solution in form of x and y or y and x. So ये था कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या करना है, एक ही ध्यान में रखना है, जब भी वेरिएबल x, x स्क्वायर, x ऐसे प्रेजेंट हो गए डेरिवेटिव के साथ, तो वो होगा कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है ex इज इक्वल्स टू ई रेस टू जेड, एंड x इक्वल्स टू ई रेस टू जेड करोगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा एक इन द फॉर्म ऑफ y एंड z, एंड y एंड z के फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करो, बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो, और फिर जो सॉल्यूशन मिला है उसको रिप्लेस बैक करो वैल्यू ऑफ z इन फॉर्म ऑफ x. वो मिल गया जाएगा हमारा जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.